शुरू करें फिर? जी सर। हाँ। जिज्ञासा फोरम जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन का एक फोरम है, उसकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिज्ञासा के बारे में जज साहब को शायद परिचय हो, लेकिन दोबारा बता देना शायद उचित रहेगा कि ये फोरम कई वर्षों से चला आ रहा है। पहले इसको अनौपचारिक रूप से हमारे प्रेजेंट अध्यक्ष अरुण कुमार जी और प्रोफेसर मनोत यूनिवर्सिटी के, जिनका की स्वर्गवास हो चुका है, वो चलाते थे, घर पे ही चलाते थे दोनों अलग अलग, और कई विशेषज्ञों को, लोगों को बुलाते थे और हर महीने इस पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। और उस इनफॉर्मल सिस्टम के अंतर्गत 130-40 से अधिक शायद वार्ताएं आयोजित की गई कई वर्षों में। और फिर मनोज साहब का स्वर्गवास हो गया। फिर एसोसिएशन की ओर से हम लोगों ने प्रयास किया कि अब इस जिम्मेदारी को हम संभालें, और हम प्रयास करते हैं कि हर महीने एक वार्ता की जाए। विभिन्न विषयों पर वार्ताएं होती हैं। जब से पेंडेमिक हुआ है तब से इसको ऑनलाइन करते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि और शहरों से, दिल्ली से हमें अपने जो मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त एक्सपर्ट्स जो हमारे बाहर हैं, तो उनसे भी हम संपर्क करके और उनको निवेदन कर सकते हैं कि हमारा इस प्रोग्राम में शरीक हो। आज का जो ये विषय है, ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एक बड़ा अहम विषय है, और इस पर काफी चर्चा देश में हो रही है। न केवल विषय रोचक है, बल्कि हमारे गणतंत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जस्टिस पानाचंद जैन साहब जैसा विशेषज्ञ, ऑनर्ड जज हमें आज इस बात पर कुछ चर्चा करने के लिए हमें अपने मत से हमें अवगत कराएंगे। जस्टिस पानाचंद जी का पूरा इंट्रोडक्शन जरूर हमारे अध्यक्ष महोदय अभी करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि at an age of 95-96, he's still so active. He writes regularly for newspapers. He speaks. He has a wide variety of interests. And therefore, apart from giving this talk, he should be a source of inspiration for all of us, how to be active and how to be productive for the society and keep healthy. Keep yourself healthy and keep mentally so agile. So, sir, with these words, may I request you now, sir, Shri Arun Kumar, our association president, to kindly formally introduce Judge Saab and then begin the proceedings. Thank you. Friends, it is a matter of great honor for us to have today Justice Panachan Jain. A very hearty welcome to Justice Panachan to Jigyasa Forum of our association. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you. Justice Panachan is very well known to most of us, but for the benefit of some of us who have joined from outside Rajasthan, let me tell you that Justice Panachan, after completing his law course, joined the bar in 1951. He practiced at Kota and Jaipur for 34 years and was appointed judge of the Rajasthan High Court in 1985. He retired in 1989. After retirement, he was a member of Tribunal of Judges to look into the violation of human rights of peasants who were evicted in Singur, Nandigram, West Bengal. He was also a member of the People's Tribunal for Sardar Sarovar Dam. An eminent judge, Justice Panachan was known for righteousness, honesty, transparency,
and human values. He was highly critical of the practice of sati, which he considered as inhuman and an act of tyranny against women. Justice Panatanji has been chairman or secretary of several organizations like Association of Retired Judges of Supreme Court and High Courts, Lions Club, Vedic Kanya Mahavidyalaya, Kanodia PG College, etc. As district governor, Lions Club, his motto was, "Wipe out tears from every eye." He stands for abolition of capital punishment. Justice Panatanji has participated in international conferences on climate change at Copenhagen in 2009, at Cancun, Mexico in 2010, in Germany and Portugal in 2011. He is a thinker and a prolific writer and is the recipient of Sahitya Ratna Award. He has been writing guest editorials for more than 10 years, and it is really admirable that he continues to do so even at the age of 96. हम उनसे इस बात का भी रहस्य जानना चाहेंगे कि इस उम्र में भी इतना सक्रिय कैसे रहा जा सकता है. We are aware of the raging controversy these days about the basic structure of our constitution and the process of judicial appointments to the Supreme Court and the High Courts. We are eagerly looking forward to listening to the views of our distinguished guest on this subject of topical interest. Justice Panatanji जी, आपसे निवेदन है कि आप कुछ अपना विचार प्रकट करें. नमस्कार सर, मैं सभी को नमन करता हूँ. आपने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिया. मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपने इस योग्य बनाया, मैं आपका आभारी. आज सब्जेक्ट हमने लिया है कि वास्तव में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. इस पर जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है. विपरीत परिस्थितियों में देखिएगा, हमने अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही 74th गणतंत्र दिवस मनाया है. उसकी आपको सबको भी बधाई. लेकिन इस स्थिति में देख रहे हैं कि एक और तो हम 74th गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, दूसरी ओर जो है आज जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, इनके मध्य जो है टकराव चल रहा है. बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है. एक ओर से आवाज आ रही है कि हम आज जिस तरह की स्थिति चल रही है उसको आप देखेंगे कि एक ओर से आवाज आ रही है कि हम हमारे राज्य में जो है ये जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको नहीं घुसने देंगे. दूसरी तरफ ये आवाज आ रही है कि संसद बड़ा है, कानून बनाने वाला बड़ा है. एक ये आवाज आ रही है कि इन जजों को जो चुनकर नहीं आते हैं उन्हें जो है चुनने का, अपने ही लिए जो है जजों को चुनने का क्या अधिकार प्राप्त. कई तरह की आवाजें आ रही हैं. इन आवाजों में जो है आज हमें इस को देखना है कि वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति को हम कहाँ ले जाना चाहते. तो इस संबंध में मैं थोड़ा सा जो है संविधान की ओर अपनी बात को रखना चाहता हूँ. हमारा संविधान है सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. देखिएगा 3 शब्दों का कई प्रयोग किया है, और जो हमारा संविधान है उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. इस संबंध में जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं. इन तीनों में कैसे समन्वय किया जाए ये हमारे संविधान में बहुत अच्छी तरह से हमारा एक प्रियम्बल है. उस प्रियम्बल में हमें बतलाया है कि हमने ही यानी देश के लोगों ने ही अपने आप को जो है यह संविधान जो है अर्पित किया है, समर्पित किया है. इसमें जो है जो दिया है, और सबसे बड़ी बात यह कही है कि हम ये प्रतिज्ञा करते हैं
कि देश के लोगों को हम न्याय देंगे। कैसा न्याय देंगे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल क्यों लिखा गया? क्योंकि उस समय जो है हमारी स्थिति इस प्रकार से शोषण हो रहा था जातियों का, जो कमजोर लोग थे उनके प्रति, इसलिए सोशल को जो है पहला महत्व दिया, इकोनॉमिक को बाद में दिया, और पॉलिटिकल। हमें ये समझना होगा कि हमारे पॉलिटिकल राइट क्या है। जी बर्थ लेते ही जो राइट प्राप्त होते हैं उसे हम पॉलिटिकल राइट कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम उन्हें कहेंगे फंडामेंटल राइट। राज्य सरकार का जो कर्तव्य है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना, ये हमारे जो है नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव है। तो पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट एंड सोशल राइट, ये हमें प्राप्त है। इनको देने की, इनको दिया जाना जो है यह आवश्यक है। और यदि इनका कोई ब्रीच करता है, अगर मान लीजिएगा मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट का कोई ब्रीच करता है, तो उस ब्रीच के संबंध में जो है क्या निर्णय लिया जाएगा, किस प्रकार से उसका समाधान निकाला जाएगा, इसका तरीका दिया हुआ है। हमारे संविधान में हमने जो बात कही उसमें शिक्षा के संबंध में जीने का अधिकार दिया, पर्यावरण की रक्षा का अधिकार दिया, और कई अधिकार जो है इस संबंध में हमें दिए गए। साथ ही जो है एक फंडामेंटल कर्तव्य दिए कि जिसमें बतलाया कि इस देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा। देश के नागरिकों के कर्तव्य में यह तक बतला दिया कि वे हिंसा से दूर रहेंगे। प्रत्येक नागरिक हिंसा से दूर रहेगा, संविधान की रक्षा करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, संस्कृति की रक्षा करेगा, और जो जिन आधारों पे हमने जो है ये अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त की है उसके संबंध में जो है वो अपना उत्सर्ग देगा। इन सब चीजों को छोड़ते हुए अब हम आते हैं कि हर एक जो है, जो भी पदाधिकारी है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर है, इन सबके कर्तव्य दिए हैं कि इनके कर्तव्य क्या है। दूसरा ये कि सरकार का कर्तव्य क्या है। तीसरी बात यह कि अगर सरकार अपने कर्तव्य की पालना और अपनी ड्यूटी की पालना नहीं करती है तो इस संबंध में क्या होगा, उसका क्या होगा। तो इसके संबंध में जुडिशरी है कि जहां भी अगर सरकार ने किसी प्रकार की कोई गलती की तो उस गलती को जो है ठीक करने का दायित्व है ये जो है जुडिशरी को दिया। तो ये जो प्रश्न आता है कि जुडिशरी में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इसको हमें इसी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि तीनों ही जो है अपने अपने कार्य में स्वतंत्र है। तीनों सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, तो न्यायपालिका भी सुप्रीम है, दूसरा जो है न्यायिका भी सुप्रीम है, और एग्जीक्यूटिव भी सुप्रीम है। तीनों सुप्रीम है, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र में, यदि एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेरेंस करते हैं तो कोर्ट का दायित्व आता है कि कोर्ट जो है उसमें इंटरफेरेंस करे। अब देखिए किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव का आज इंफ्लुएंस हो रहा है, आज जुडिशरी के ऊपर अटैक हो रहा है, और जो पदाधिकारी उनके ऊपर अटैक हो रहा है। अभी कल का ही बात है, तेलंगाना में जो है गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की कार्रवाई चल रही थी, इसमें जो है उस स्टेट का मिनिस्टर नहीं गया, और कारण ये बतलाया कि हमें जो है गवर्नर की आवश्यकता नहीं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं इनके संदर्भ में अपन देखने का प्रयत्न करेंगे कि ये क्या है, जो विषय है हमारा वह विषय क्या है। अब मैं विषय पर आता हूँ। विषय जहां तक पहला सवाल है कि भाई ये कौन बड़ा है और कौन छोटा है, मैंने निवेदन किया कि सभी जो है बराबर हैं, सभी सुप्रीम हैं, अपने अपने क्षेत्र में हैं। न्यायपालिका को उस समय अधिकार पैदा होता है जब कोई एग्जीक्यूटिव वाला व्यक्ति जो है इस संबंध में अपने अधिकार का ट्रेस पास करता है, अधिकारों को जो है अधिकारों का कुठाराघात करता है, या इंडिविजुअल के जो अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं या दूसरे अधिकार हैं के संबंध में कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे उनको जो है नुकसान हो, उनको हानि हो। तो उस संबंध में जो है जुडिशरी सामने आती है, और जुडिशरी का कर्तव्य है
वह न्याय दे, क्योंकि जैसा प्रियम्बल में कहा है, न्याय देना हमारा कर्तव्य है। जो मैं निवेदन कर रहा था कि न्याय के संबंध में और न्यायपालिका के संबंध में, न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका का काम है कानून बनाना। यदि विधायिका कानून बनाती है तो कानून बनाते समय अपने अधिकार का प्रयोग गलत करती है। जो तीन लिस्ट दी है उनके अनुसार जो है वो आचरण न करके और ट्रेस पास करके यूनियन का कानून जो है स्टेट नहीं बना सकती और स्टेट का कानून यूनियन नहीं बना सकती। केवल कॉन्करेंट लिस्ट है उसका कानून बना सकती। तो यदि ये शक्तियों का अगर ट्रेस पास होता है तो उस संबंध में जो है न्यायपालिका उनको ठीक कर सकती। तो ये जो घटनाएं जो हो रही हैं आज के अपने लॉ मिनिस्टर हैं वो आज क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या क्या कौन क्या कह रहा है, इन सबको अपन को देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, देश किधर जा रहा। एक चर्चा का विषय आता है कि सब हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति माननीय श्री धनखड़ साहब ने तो स्टेटमेंट दिया कि हम जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो केशवानंद भारती का केस है, मैं इसको सही नहीं मानता। कहाँ तक उचित है? देखिएगा, वो एक ऐसा जजमेंट था कि जिसको जो है आज तक मानते आ रहे हैं और कई चीजों में रिपीट किया है। हम उसको नहीं मानते, मैं नहीं मानता हूँ। भाई आप कौन है जो नहीं मानते? आपका काम क्या है? आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपकी ड्यूटी केवल इतनी सी है संविधान में कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे, तो प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में जो आप काम करेंगे केवल इतना सा है। और दूसरा, आज एक्स ऑफिशियो जो राज्यसभा है उसके आप चेयरमैन हो, केवल इतना सा कार्य है। अब इस कार्य में जो है उनको क्या है, ये कौन सी अथॉरिटी है? एज ए पब्लिक सर्वेंट भी उनकी ड्यूटी है 144 के तहत कि पब्लिक ड्यूटी के जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो संविधान, वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करें, उसको निभाएं, उसके अनुसार जो है कार्य करें। तो ये सब कार्य जो हैं ये इस प्रकार से हो। तो आज ये जो प्रश्न आ रहा है ये कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जजों द्वारा जजों का नियुक्ति करना, ये इसको जो है हम ऐसा टाइटल दे सकते हैं। तो उसके संबंध में हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 124 है, उसका सब क्लॉज 2 है, उसमें दिया हुआ है कि जजों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट एक जो है रिकमेंडेशन भेजेगी। रिकमेंडेशन किन किन को जाएगी? ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, सरकार को जाएगी, प्रेसिडेंट को जाएगी। ये सब रिकमेंडेशन जो है जाकर और ये बयान, अब उसका निर्णय कैसे किया जाए उसमें दिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो है कंसल्टेशन होगा। तो ये कंसल्टेशन की बात आती है तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है एसपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 82 का जजमेंट। उस 82 के जजमेंट में ये बात आई कि भाई नियुक्ति कौन करेगा और नियुक्ति कैसी होगी। तो निर्णय दिया कि भाई नियुक्ति करने का दायित्व है ये सरकार का है। ये माना गया कि भाई ये 5-3-5-2 का जजमेंट था, इसलिए इसका जो है पुनः जो है 93 में जो है इस संबंध में जो इस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनने जो है उस केस में इसको कंसीडर किया और ये कहा कि नहीं, कंसल्टेशन का मतलब है सब्सटेंशियल कंसिडरेशन, कॉन्करेंस नहीं है, कॉन्करेंस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा उसमें लीड डाउन किया कि भाई एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, जो क्या होगा, किस प्रकार से इसको किया जाएगा। और ये तय किया गया कि एक बार रिकमेंडेशन करने के बाद दूसरी बार अगर रिकमेंडेशन की जाती है तो सरकार को उसको मानना होगा। ये प्रिंसिपल लीड डाउन ये सिलेक्शन के संबंध में। तो जजेस की नियुक्ति के संबंध में है।
आदि आ रहा है कि भाई देखिएगा जजेस की नियुक्ति के संबंध में प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये इसका जो है पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं होने के संबंध में जो है ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई जो है ये पारदर्शी इसलिए नहीं है और पारदर्शी है नहीं है क्योंकि इसके संबंध में जो है दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर ही नहीं दिया जाता। और दूसरा ये भी किया जाता है कि भाई भतीजेवाद जो है ये न्यायालय में भी चल रहा है, कार्यपालिका में तो है ही, दूसरी जगह है, लेकिन जो है यहाँ पर भी चल रहा है। और ये भी कहा जाता है कि 100 परिवार ऐसे हैं जिनके जिनके व्यक्ति जो है इस जुडिशरी में आते हैं। हालांकि इसके संबंध में जो भी ये कहा गया है उसका कोई डिटेल्स नहीं है, केवल मात्र जो है एक गंभीर जो है एक आरोप लगाया जाता है जुडिशरी पर, इसके अतिरिक्त नहीं। कई चीजें आती तो जुडिशरी का जो ये है। और अभी जो कई लोगों के जो है जो जुडिशरी का जो भी रिकमेंडेशन करती है सरकार उस पर बैठ जाती है, कई साल तक निर्णय नहीं होते हैं। मैं कुछ जजमेंट से संबंध में और कुछ न्यायाधीशों के संबंध में निवेदन करूंगा कि कई न्यायाधीशों के जो आजकल जो सबसे चर्चित है इस समय वह है सौरभ। हेलो, ये सौरभ कृपाल है, सौरभ कृपाल। सौरभ कृपाल जी का वह है। इसके साथ साथ जो है देखिएगा सौरभ कृपाल के संबंध में ये एक गे है, समलैंगिक, और समलैंगिक के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के संबंध में बात करते रहते हैं। ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड और एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा ग्रहण की है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इन्होंने 370 वाले केस में जिसमें उसकी वैलिडिटी चैलेंज किया था, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इनका नाम रेज किया। इसके नाम को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि अगर ये जज बनते हैं तो समलिंग के अधिकारों के संबंध में ये पैरवी करेंगे और इसलिए जो है इनका ये पक्ष जो है ये कहेगा कि भाई ये जो है कोई पक्षपात कर रहे हैं, बायस्ड हैं। दूसरा ये कहा गया कि भाई इनका जो पार्टनर है वो विदेशी है। तो ये प्रश्न ये उठाए गए। अब इनके संबंध में ये प्रश्न उठाए गए, दूसरों के संबंध में भी ये है, जो दूसरे जजेस हैं, तो नाम मैं बताऊंगा, सोमशेखर और सत्यम, इन लोगों के संबंध में भी प्रश्न उठाए। ये प्रश्न इसलिए उठाए गए और ये कहा गया कि भाई ये लोग जो है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानते हैं, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें नहीं बनाना चाहिए। एक के संबंध में ये कहा गया कि भाई ये जो है एक अपने ही मत को जो है प्रमोट करने के लिए बात करते हैं और ये बहुत ही अड़ियल किस्म के आदमी हैं। तो ऐसे कई बातें जो है ये जो जजेस हैं इनके संबंध में आई। तो ये प्रश्न पैदा हुआ कि भाई जो जब रिकमेंडेशन भेजी गई तो रिकमेंडेशन के संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद ये कानून तो ये था, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, कि एक बार रिटर्न करने के बाद जो है उसको जो है दोबारा भेजा जाता है तो उसको सरकार को मान लेना चाहिए। नहीं माना गया। फिर इस संबंध में सौरभ के संबंध में जो है फिर यही बात आई कि इनका नाम तीसरी बार भेजा गया, इन तीनों जजेस का नाम। तब ये प्रश्न आया कि भाई इन्होंने भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, भेजने के साथ ही साथ इन तीनों नामों के संबंध में जो राखी और आईबी की जो है जो रिपोर्ट थी उन रिपोर्ट को भी पब्लिश कर दी। फिर यहाँ पर ये प्रश्न पैदा हुआ कि भाई जो है ये अति गंभीर जो है ये सीरियस रिपोर्ट्स हैं, इनको कैसे बंद कर। तो इस संबंध में विवाद पैदा हुआ। आज ये विवाद चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा।
तो इसके संबंध में ये जवाब दिया गया, भाई देखिएगा कि आपने जो निर्णय लिया है वो विवेकपूर्ण है या नहीं, इसे कैसे देखा जाएगा। इसलिए अगर ये पब्लिश कर दी गई है तो इस पब्लिश करने में कोई नुकसान नहीं है, किसी का भी कोई नुकसान नहीं है इस संबंध में। और दूसरा, कोई गंभीर आचरण नहीं। जस्टिस नरीमन ने कहा और एडवोकेट जो है नरीमन ने ये बात कही कि भाई ये कोई गंभीर आचरण नहीं है, इसलिए इसको डिस्क्लोज करने में किसी भी प्रकार के सरकार ने कोई गलती नहीं की है। तो आज इन प्रश्नों को लेकर चल रहा है। दूसरे नाम ऐसे हैं कि जिनके संबंध में यह है, भाई उनके संबंध में जो टीका टिप्पणी आई है, हमने आपको ये भेजा है, भेजने से जो है ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है क्या चीज है। तो जो भेजा गया है वो इनके जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जुडिशरी का जो है उसके संबंध में जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि भाई उनका विवेकपूर्ण था या नहीं था। तो ये जुडिशरी के संबंध में और ये जो है संसद के संबंध में जो है जिस तरह से बात चल रही है, बात आती है कि दोनों में से कौन बड़े हैं। तो धनखड़ साहब की बात को मैं आता हूँ। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबसे अच्छी बात जो है कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में नरीमन ने ये कहा कि टाइम हो रहा है कितनी देर, 10 मिनट बोल क्यों साहब? हाँ अभी 10 मिनट तो आराम से 10-12-15 मिनट तक बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी तो मैं मुख्य बात पर आ जाता हूँ कि ये कॉलेजियम सिस्टम जो है, सारे सिस्टम में ये कॉलेजियम सिस्टम बेस्ट है, ये नरीमन ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, क्योंकि दोनों जो है अपनी बात पर टकराव पर अड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट को जो है अड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ही जो है अपने आप को कायरता का कोई व्यवहार करेगी, अगर उस हिम्मत नहीं करेगी तो दूसरा कौन करेगा। तो नरीमन ने जो बात कही तो यह थी कि बेस्ट विकल्प अगर कोई है तो यही है, इस कॉलेजियम को आपको मानना पड़ेगा, हम इस पे इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई इनकार करता है तो आर्टिकल 141, 142, 43, 44, 45 इन आर्टिकल को पढ़ी है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट इनसे इनकार नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है, ये कहने का अधिकार नहीं रहा। तो ये तो मैं निवेदन कर रहा था कि कॉलेजियम सिस्टम को जो है हमें इसी तरह से बनाए रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हमने 2016 में जो कॉलेजियम के संबंध में और जो मेमोरेंडम के संबंध में जो बात कही थी वो बात बिल्कुल सही, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। तो दोनों अपने अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम की तो यह बात है, इस कॉलेजियम सिस्टम में जो टकराव आ रहा है, ये टकराव जो है बहुत गंभीर टकराव है। सरकार ये कहती है कि भाई हम सब कुछ है, हम जो है जुडिशरी की बात को हम कानून बनाते हैं, इसलिए जो है हमें कानून बनाने का अधिकार है, तो हम जो है इनके कानून को भी रिवर्स करना चाहते हैं। और आज पैटर्न जो अगर देखें तो ये समझ में आता है कि सरकार क्यों लड़ रही है, विधायिका का क्यों लड़ने को आमद है। तो कहते हैं कि भाई हमारे काम में आप इंटरफेरेंस मत, हम आपके काम को। तो अब ये विचार चल रहा है कि किसी भी प्रकार से विधायिका को भी जो है ये अधिकार दिया जाए कि वे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय उनके खिलाफ है तो उस निर्णय के संबंध में भी जो है वे उसको रिवर्स कर सकते। इजराइल में यही बात है। इजराइल में आज जो है कानून बनाने के संबंध में बात आ रही है कि भाई ये संसद कानून बनाए कि जिससे संसद को अधिकार हो वह सुप्रीम कोर्ट के दादागिरी को ना माने और सुप्रीम कोर्ट के जो है जजमेंट को रिवर्स करने का अधिकार है। सिमिलर बात जो है आज यहाँ हिंदुस्तान में आ रही है, यही विचार चल रहा है। तो ये जो
जो जो इस तरह का जो है ये एक संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के माध्यम से कैसे निकला जाएगा, ये एक विचार करने का प्रश्न है, क्योंकि बहुत गंभीर है, गंभीर प्रश्न है और गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये अब जो बात आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, इन संबंध में क्या आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा और ये जो है सारी उस चीजों की पालना करेगा जिन पालना करने के लिए प्रेमवेल में कहा है या डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में लेट डाउन किए हैं। मुझे बोलने का अधिकार है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू बिलीव इन द रिलीजन, राइट टू स्पीक, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो अधिकार है, ये जो फंडामेंटल अधिकार मुझे दिए गए हैं, इन अधिकारों के संबंध में जो है वे अगर कहीं पर भी होता है तो उसके संबंध में जो है अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात आई है, इस बात के संबंध में हमें देखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो अभिप्राय है वो ये है मूलभूत उसका तरीका। तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है ये जो प्रश्न आया था कि फंडामेंटल राइट में क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, केशवानंद भारती के केस में ये बात आई थी, तो उन्होंने लेट डाउन किया। ये भारत है कि जिसने जो है ये फंडामेंटल राइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो बात है, सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को उन्होंने जो है लेकर आए। तो इस सिद्धांत का क्या मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि आज सरकार ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती कि जो है संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन कर सके, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसके लिए तो फिर करना पड़ेगा, संविधान को ही जो है खत्म करना पड़ेगा और नया संविधान लाना पड़ेगा। आज के संविधान में जो मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करता हो। जो मूलभूत अधिकार, जो फंडामेंटल अधिकार हैं के संबंध में जो है वो बात करता। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल लेट डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसे जो है हमारे यहाँ तो हमारी कोर्ट तो उसकी अनुपालना कर ही रही है, लेकिन जो दूसरे देश हैं, कई देशों ने, साउथ अफ्रीका है और कई देश हैं जिन्होंने इसको, लंका है, जापान है, दूसरे लोग हैं, वहां पर जो है इसकी पालना की जाती है, उनको इन्होंने बोरो किया है। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमें मानना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे कोई हम नई चीज माने, लेकिन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो बेसिक प्रिंसिपल में आज आप जो चर्चा चल रही वह यह है कि इस विधायिका को ये अधिकार दिया जाए, विधायिका जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर सकती है। ये संभव नहीं है आज की तारीख। इसके संबंध में तो सुप्रीम कोर्ट का जो अमेंडमेंट का जो अधिकार है, अमेंडमेंट के अधिकार को ये हनन करता है और किसी भी प्रकार जो है ये बेसिक सिद्धांत लेट डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनके विरुद्ध मैंने निवेदन किया कि बेसिक सिद्धांत क्या है। बेसिक सिद्धांत प्रियम्बल से देखेंगे, उसके अनुसार देखेंगे, प्रियम्बल में सब बातें दे रखी हैं और दूसरा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। कॉलेजियम मीन्स जजेस द्वारा जजेस की नियुक्ति, पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का जो अंतर है, द्वंद्व है, वह नहीं होना चाहिए और दोनों को ही, विधायिका को
और न्यायपालिका को दोनों ही अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करना चाहिए। और दूसरा जो है बेसिक स्ट्रक्चर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को ही हमने कर दिया खत्म, इस थ्योरी को ही खत्म कर, वंडरफुल थ्योरी है जो इवॉल्व की गई है। और इसमें जो है नानी पालकीवाला का सबसे बड़ा हाथ है। नानी पालकीवाला ने जब ये केस को आर्ग्यू किया था, केशवानंद भारती के केस को, तो उस केस में केशवानंद भारती के केस में जिस समय नानी पालकीवाला इसको बहस कर रहे थे, तो ये कहा गया था एक फरिश्ता जो है आज अपनी बात को कह रहा है, इसे मानो। फरिश्ते के द्वारा जो है फरिश्ता शब्द का प्रयोग किया गया है नानी पालकीवाला। और आज दूसरे लोग हैं, आज सारे जितने भी जो एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो इस बात को मानते हैं, इसे सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिक के थ्योरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, न कॉलेजियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए। नाम तो मैं बहुत सारे हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी तरफ कुछ जजेस ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि भाई जो है ये एक जज ने तो यहाँ तक किया, मिस्टर आर.एस. सूदी है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान को बंधक बना दिया। अब ये क्या बात, सुप्रीम कोर्ट ये तो जो है ये जो केशवानंद भारती का केस था, ये तो कोई जजमेंट ही नहीं है। इस तरह की बातें ये भारतीय संविधान के अवैध है। तो इस तरह की बातें जो है हो रही है, ये सब चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए। और कहीं न कहीं जो है स्ट्रॉन्गली जो है इसके संबंध में आज मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं देखिएगा वकालत से संबंध रखता हूँ और वकील से ही जो है मेरा सारा का सारा ये 1951 से लेकर आज तक जो वकालत का चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज भारत का बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के, या यूँ कहूँगा कि न्यायपालिका के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। इसे आना चाहिए। इजराइल में जो आंदोलन हुआ, इजराइल में लोग जो है सड़क पर निकल कर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, न्यायपालिका को विधायिका कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो कानून के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दे। लेकिन हमारे यहाँ आज बार एसोसिएशन कंप्लीटली बम है। क्यों है? सारे जो है जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं पुराने जजेस के, रिटायर्ड जजेस के जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है इस संबंध में कमेंट्स आए। अगर इन कमेंट्स को सबको हम देखें तो एक ही नतीजा निकलता है कि भाई इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो जो है जैसे सीबीआई को जो है स्टेट में नहीं घुसने देते हैं, ये क्या मतलब है? तेलंगाना की जो बात मैंने निवेदन की, क्या है कि हम तो इसको मानते ही नहीं। तो होना क्या चाहिए? बैठ के बात होनी चाहिए इस संबंध में। जो है एमओपी को जो है नरीमन ने, जस्टिस नरीमन ने जो बात कही है, मैं उसकी बात को सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, बैठ के इस संबंध में जो ये है उसके संबंध में हमें बात करनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि फिक्स टाइम नियत कर दिया जाए, कि फिक्स टाइम नियत करने के बाद जो है इस नियत कर दिया जाए कि सरकार को जो रिकमेंडेशन भेजी है वो रिकमेंडेशन 30 दिन में, 60 दिन में इसको भेजें। अगर नहीं भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उसको मान लिया जाएगा। कुछ भी हो इस तरह का है, लेकिन दोनों को बैठ के और इस संबंध में बात करनी चाहिए। बात करने से ही हल निकलेगा, नहीं तो जो है संवैधानिक संकट नहीं आ जाए, इमरजेंसी जैसा संबंध नहीं आ जाए। जैसा भी संभव है तो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जुडिशरी और विधायिका और कार्यपालिका, इन सबको मिलकर जो है इस देश को आगे बढ़ाना है। आज बहुत कट्टरता के साथ जो है, जैसे लॉ मिनिस्टर है तो हर जगह जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जिस तरह से आलोचना की है, जिस तरह से कहा है, वो सब जो है बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। और इस गंभीर चिंता से इस देश को निकालने के लिए आवश्यक है हम संविधान की बात को समझें, संविधान की भावना को समझें और एमओपी में जो है एक मॉडिफिकेशन करने
की आवश्यकता है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये बैठ के ही हो सकता है। यानी मोदी का भी जो है, कल मोदी ने एक जगह कहा कि साहब जो चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बहुत अच्छी व्यक्ति है। तो ये भावना जो है प्रत्यक्ष रूप में तो आ रही है, लेकिन इसको कार्यान्वित भी तो करें ना। दोनों जने मिलकर अगर इसको कर सकते हैं तो ये हो सकता है। अदरवाइज जो ये भावना आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ये सॉरी कार्यपालिका बड़ी है, विधायिका बड़ी है, ये बिल्कुल गलत है। इस संकट से हमें निपटने की आवश्यकता है। आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बोलने में डिफिकल्टी आती है थोड़ी वीकनेस की वजह से, तो मैं थोड़ा कहीं वो होता हूँ इसका, नहीं बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैं अच्छी बहुत चाहता हूँ कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कई जगह बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन चूंकि मुझे मानव साहब ने भी कहा, शिष्योदय जी ने कहा, तो मैंने इस चीज को स्वीकार किया कि मैं बोलने का प्रयत्न करूंगा। आज इस पर आर्टिकल भी मैंने लिखा है, शायद वो भी। तो कुछ जिज्ञासाएं हो सकती है लोगों की, सर जिज्ञासा क्लब है तो कुछ जिज्ञासाएं हो लोगों की तो वो ले हाँ, सकते हैं तो सर वो मैं आपकी। निवेदन करता हूँ कि उस संबंध में जो है जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का जो है मैं उत्तर दूंगा। सर सर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद पाना सिंह जी, बहुत आपने सुंदर ढंग से इसका विवेचन किया। अवश्य ही कई लोग कई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो भंडारी जी हाँ। सर मैं मोटे रूप से जो भी कॉलेजियम सिस्टम की कमियां हैं उसके बावजूद मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छा सिस्टम है और इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन प्रश्न यहाँ ये नहीं है। मेरा मान्यता है प्रश्न यहाँ ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। सर जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, आर्टिकल 124 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। उसमें सारे संविधान में कॉलेजियम शब्द का उल्लेख भी नहीं है। तो इसलिए ये देर सवेर से ये हो सकता है उस वक्त नहीं आया हो ध्यान में, लेकिन अब सरकार ये महसूस कर रही है कि ये संविधान में जो दिया हुआ है और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स दिए हुए हैं उसमें लॉ मेकिंग पावर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और ये जो जो जजमेंट हुआ है और उसके अंतर्गत कॉलेजियम बना दिया गया है उससे निश्चित रूप से जो लॉ मेकिंग पावर है उस पे एक तरह से एनक्रोचमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। और इसलिए आप ये भी देखेंगे कि एनजीएससी एक्ट जब लाए थे तो उसको सर्वसम्मति से एक प्रकार से पार्लियामेंट से और क्लियर हुआ था, उसके बावजूद भी उसको क्वैश कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ मौजूदा जो डिबेट है वो एक तरह से प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है दोनों तरफ से, जिसमें कोई न कोई नया संशोधन करके इसमें किसी न किसी रूप से कॉलेजियम में कुछ संशोधन तो करना पड़ेगा। कुछ लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ेगा, और दोनों को जैसा आपने सही फरमाया है कि इनको बातचीत करके इस मैटर को हैंडल करना पड़ेगा। ये सही है कि जो भी निर्णय आज की तारीख में है वो बाध्य है, लेकिन वो निर्णय भी समय समय पर इवन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले जो है उन पर रिव्यू होता है। तो रिव्यू के लिए तो उसकी आलोचना भी करनी पड़ती है कि वो फैसला आपका गलत था। इसलिए मुख्य रूप से जो मेरा मान्यता है, एकेडमिक क्वेश्चन ये है कि ये कॉलेजियम का जो निर्माण हुआ है वो एक प्रकार से लॉ मेकिंग पावर में आ गई सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद। नहीं, देखिएगा आपने जो बात कही किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये कोई जज मेकिंग पावर को एक्सरसाइज किया है। कानून बनाने की बात को जो है इन्होंने जो है किसी तरह से कानून बनाने का काम हाथ में लिया है, ऐसा नहीं है। कॉलेजियम का मतलब ये है कि कंसल्टेशन, एक तो आपने कहा कि सरकार का नहीं है, प्रेसिडेंट का काम तो ये है कि आपने बना के दे दिया, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन। बात तो इतनी सी की है
कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किस तरह से करेगा। तो ये संबंध में जो है 93 का जजमेंट बड़ा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक जजमेंट है। उसको जो है 1990 में भी जो है उसको जो है माना गया है कि ये ठीक है, ये इवॉल्व किया है, क्योंकि एक रुकावट नजर आती थी उसके एनालिसिस में, 124 के इंटरप्रिटेशन में एक रुकावट नजर आती थी, इसलिए इस कॉलेजियम का वो किया। कॉलेजियम है क्या, इतने जजेस से कैसे कंसल्ट करेंगे, जितने जजेस से करेंगे, तो एक स्थिर कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है 5 जजेस की बनती है, इसलिए 5 जजेस का नाम दिया। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसमें नया कानून बनाया नहीं है। यूं मैं ये कह सकता हूँ कि संविधान को अगर हम पढ़े हैं तो संविधान इस बात को भी कहता है कि जहां पर कानून नहीं है वहां हम निर्देशन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है। कई केसेस मिलेंगे ऐसे कि जिसमें उन्होंने निर्देशन दिया कि यह काम करो, जब तक जो है कानून नहीं बन जाता तब तक हमारा ये कानून जो है लागू। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी तरह से ट्रेसपास किया गया हो, कोई ट्रेसपास की इसमें गुंजाइश भी नहीं है, केवल मात्र जो है इंटरप्रिटेशन का सवाल है। इंटरप्रिटेशन दिया है तो कॉलेजियम इज मियरली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव जजेस, और आपस में जो है इसी तरह से एक कंसल्टेशन हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भंडारी साहब ने जो बात कही वही किसी हद तक ठीक है, लेकिन कानून बनाने की जो अथॉरिटी की बात कही ट्रेसपास करने के, उससे मैं सहमत। जी इंद्रजीत। हाँ, थैंक यू सर। 2 मुद्दे हैं इसमें। मुद्दा नंबर 1 कि जो केशवानंद की जजमेंट में कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट कैनॉट बी ऑल्टर, एक मुद्दा। और दूसरा है जजेस का अपॉइंटमेंट। आई विल वेरी ब्रीफली dwell on each issue. On the basic structure of the Constitution, there was a lecture by Mr. Fali Nariman, just 2-3, a talk on India Today का जो भी चैनल है टीवी पे, a beautiful talk in which he said that the Venkatachalaya Commission, I think way back in early 90s, looking at the appointment of judges, had said that there may be representatives from the government 2 and 3 of the judges. A bill was framed in Mr. Vajpayee's time. Unfortunately, the bill could not be passed because the government fell. And he has opined, Mr. Fali Nariman, that is the best course as of today. The judges will have the last word. Still, 3 of them will be there. That's one issue. On the basic structure, sir, this country will collapse if we give up the Keshavananda judgment. And I only hope and pray that that never happens. This is a personal view. It's a dangerous path that we are treading. But my personal view is that we are in for trouble if we want to tinker with the Keshavananda judgment in any way. And least of all, the law minister and the Honorable Vice President of India saying what they are. They should hold their horses. These are things which should be talked about. In fact, Mr. Fali Nariman mentioned one example where the head of the judiciary, the Chief Justice of India, and the Prime Minister could meet once in a month informally, nobody else, and pour their heart out to each other. Nothing can be better than that. These are all suggestions, but these are my views. Thank you very much. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो नरीमन ने जो भाषण दिया था वो वास्तव में मैंने भी सुना है, मैंने उसको लिखा है, और वो बहुत अच्छा उनका वह है कि दिस इज द बेस्ट, यही शब्द का प्रयोग किया है कि दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नो अदर अल्टरनेटिव कैन बी एप्लीकेबल। तो ये ठीक है, आपने कहा जो, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसमें केशवानंद भारती के केस में अगर इस तरह की बात कहने लगे, मतलब आप कहने के लिए आप कौन सी पावर है जिसकी वजह से जो है धनखड़ साहब ने ये बात कही कि भाई मैं नहीं मानता हूँ, उनको नहीं मानने से होता क्या है? का काम केवल जो है डिसाइड करना, भाषण देना और एब्सेंस में जो है कार्य करना, ये उनका कार्य है। और जो संविधान और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है,
कोर्ट की बात को न मानने का कर्तव्य जो है पब्लिक सर्वेंट का है, जैसा मैंने पहले कहा। तो हमें जो है ये अगर वास्तव में जो है इसे ठीक नहीं किया गया तो संकट आएगा, भारी संकट आएगा, देश विपत्ति में होगा और हमारा लोकतंत्र जो है ये डिगमगा जाएगा। आशीष श्रीवास्तव। हाँ भैया, नमस्कार सभी को। जस्टिस पानाचंद जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के, और वो उन्होंने एक ज़माने में लोकायुक्त का बिल ड्राफ्ट करके ट्रांसपेरेंसी की तरफ से भेजा था, और अभी भी हमारे मार्गदर्शक हैं, और अभी अतिथि संपादक वो भी हैं राजदूत के, और मैं भी हूँ। अभी आज उनका आर्टिकल बहुत ही अच्छा आया है, मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने जो बात कही है उसमें मैं पुष्टि करते हुए मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो इंद्रजीत खन्ना ने बिल्कुल वही बात कही जो मुझे कहना था, तो वो मैं फुल्ली एंडोर्स करता हूँ। फली नरमन का बहुत अच्छा इंटरव्यू आया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में निगोशिएशन इज द बेस्ट कोर्स, और अगर वो वाजपेयी साहब के सामने जो एक्ट बना था, अगर वो बिल बना था, अगर वो हो जाता पास, और उसको रिवाइव करना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उसको रिवाइव करना चाहिए, सरकार चाहे तो उसे लाए, और वो सरकार उसके लिए भूली हुई है ऐसा लगता है। निगोशिएशन इज द बेस्ट कोर्स, बिकॉज ये कोलिजन होने वाला जो है ये स्थिति ठीक नहीं है। और साथ में बात ये है कि मैं केशवानंद भारती का केस बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन सर ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर तो सरकार और मतलब पार्लियामेंट के पास में है कि केशवानंद भारती के जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए वॉट एवर इज द सिचुएशन, केशवानंद भारती केस बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक इट इज इन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू मी। भाई आपने कहा कि जस्टिस पालाचंद जी के गैप्स को भर सकते हैं, एक लॉ का जो गैप है उसको भर सकते हैं, एक लॉ वो बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने बेसिक डॉक्ट्रिन के डेफिनेशन कर दिया है। तो वो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने हैज ओवर रीच्ड इट्स जुरिसडिक्शन इन दैट केस। आई सपोर्ट मिस्टर भंडारी, आई थिंक प्रॉब्ली he said so, लेकिन ये at the end of it, everything at the end of the day, whatever you can say, government should negotiate and come to some understanding। जो प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में मिलते थे, फली नरमन साहब ने ये भी कहा कि 97 केसेस में कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं हुआ, और 3 केसेस में हुआ तो फिर आपस में मान लिया। मन जो मीटिंग का सुझाव था ये भी बहुत अच्छा नरमन साहब ने किया। नरमन साहब ने वर्तमान को श्रेष्ठ नहीं बताया उस डायलॉग में जो राजदीप देसाई के साथ उन्होंने इंडिया टी किया था। अगर लोगों ने सुना होगा तो उसको वो देखेंगे। और जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो एक कोलिजियम सिस्टम कहीं मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी धारा में। यू हैव टू रीड इट। आवाज नहीं आ रही। ये आपका अनम्यूट करें सर, आपका श्रीवास्तव, आपका अभी म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। ये कह रहा, हेलो, आपका तो हो गया। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नेचर में ये जो केशवानंद भारती का केस है, बेसिक डॉक्ट्रिन अपनी जगह सही मालूम पड़ती है, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जबकि जस्टिस पालाचंद जी ने ये कहा कि गैप्स को भर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई गैप लॉ में रह गया हो, आपका ये बात है और लोगों को सुन लें। हाँ जरूर, धन्यवाद। इसका तो उत्तर मैं दे ही चुका हूँ पहले भंडारी साहब के संबंध में। मेरे ख्याल कोई ज्यादा वो बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो आप जो कहते हैं ना कि नया कानून बना दिया और केस पास किया, वो बात गलत है। केशवानंद भारती का केस पढ़ने लायक केस है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो सिद्धांत और जिस तरह से डील किया गया है, वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसे मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहा तो हमारा ये सारा का सारा जो है जिसकी वजह से दिव्यता है हमारे संविधान, वही खत्म हो जाएगी। इसलिए वो ये बात करना कि भाई थोड़ी सी चीज में कानून बदल गया, अरे भाई इंटरप्रिटेशन ही क्या चीज, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? कपड़े पे सलबट आ गया, अगर उसको जो है इस्त्री लगा के और उसको ठीक कर दिया, ये इंटरप्रिटेशन है, कोई नया कानून थोड़ी बना। नहीं, केवल मात्र जो है प्रेस करके सल निकाल दिए, इतना सा इंटरप्रिटेशन का कार्य है, और यही कार्य जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जी
बिरवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? LR बिरवा साहब अनम्यूट करिए, माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि संविधान में प्राविधान है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसा कि अभी जस्टिस साहब ने कहा कि केवल हम उस गैप्स को भर सकते हैं, लेकिन जब संविधान में ऑलरेडी ये प्राविधान है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए, और उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लागू होती तो उसमें सोसाइटी के सभी सेक्शंस को जो है रिप्रेजेंटेटिव मिलता। कोलिजियम सिस्टम से हम देखते हैं कि कुछ ही लोग को जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है कि विसराज भी आ रहे हैं, खन्नाज आ रहे हैं, कृपाल आ रहे हैं, यही सब लोग आ रहे हैं। तो अगर जुडिशियल सर्विसेज का अगर प्रावधान होता तो उसमें सभी समाज के सभी सोसाइटीज को फायदा होता, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा? ये मेरा कहना सर। देखिए, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो कमीशन है उसको पेश किया गया है, इसलिए किया है कि वो आर्टिकल 14 के खिलाफ था। तो जिस आधार पर उसको खत्म किया गया है, उस आधार को अगर निपटा के और दूसरी तरह से कानून बनाया जाए, लेकिन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार तो ये कहती है हमारा वर्चस्व होना चाहिए, अपॉइंटमेंट में हमारा वर्चस्व होना चाहिए, कॉपरेशन नहीं, कॉपरेशन होना चाहिए, वर्चस्व नहीं। यही लड़ाई है। तो इस वर्चस्व को अगर हम उनको दे दें तो फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? आज जो आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, आर्बिट्रीनेस की बात करते हैं, बायस की बात करते हैं, वायलेशन ऑफ राइट की बात करते हैं, ये कहाँ जाएगा? तो इसलिए जो है ये आक्षेप लगाना कि भाई ये जो है कानून बनाते हैं या कानून बना के ये गलत है। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो एक्ट था उसमें केवल मात्र पेश इसीलिए किया गया कि उसमें प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और 3 उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना एग्जीक्यूटिव जो है ये इसमें जो है इनको कर सकती है, इसलिए आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव का दखल जो है, ये 3 इतनी बड़ी हस्तियां हैं, इन हस्तियों के सामने जो है दूसरी चलेगी नहीं, इनका वर्चस्व हो जाएगा। इसकी वजह से उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया और राइटली क्वेश किया। सर, बीच का रास्ता निकालने की जब बात नारीमान साहब कह रहे हैं और आप भी फरमा रहे हैं, तो बीच का रास्ता निकालने का मतलब यही है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए, सो दैट जुडिशरी की प्राइमेसी रहे, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, अभी प्रश्न वर्चस्व इसका नहीं है कि लेजिस्लेचर का वर्चस्व रहेगा या जुडिशरी का, प्रश्न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्चस्व है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉलेजियम का वर्णन ही नहीं है तो उसको एक इंटरप्रिटेशन के नाम पे कहीं से कहीं ले जाए। लेकिन कुल मिलाकर जैसे मैंने शुरू से ही निवेदन किया था कि कॉलेजियम सिस्टम बाय एंड लार्ज अच्छा है, इसका मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ा कि ये एक्सट्रीम व्यू लेना जुडिशरी के द्वारा नहीं नहीं हमने कर दिया सही है, ये इट इज ऑलमोस्ट अ ट्रेसपास, इट इज ऑलमोस्ट अ ट्रेसपास। नहीं, आपका कहना देखिएगा ये है भी नहीं कि जो है ये बात तो चल रही है, अभी भी चल रही है। ये देखिएगा कि अभी जो लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मैं कई बार जो है मिलता रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से भी मिलता रहता हूँ, बात होती है। तो ये बीच का रास्ता आगे जो है एक दिन तो ऐसा आएगा कि जो मिलजुल कर जो है ये रास्ता निकलेगा, रास्ता निकालना चाहिए, रास्ता निकालने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं तो सारा ही कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही ऐसा इशू है, इसको वास्तव में बैठ के निकालना चाहिए, नहीं तो भाई ये दिन भर ये सड़कों पे ही चलती रहेगी लड़ाई कि तुम बड़े कि मैं बड़ा कि ये बड़ा कि वो बड़ा कि मैंने ये कहा जो कहा, ये सब बेकार है। इतनी बड़ी हस्तियां हैं। और जब अभी मोदी जी ने जो बात कही अभी भाषण में परसों के रोज कि भाई जो है तो बहुत अच्छे, बड़े अच्छे हैं, बड़े इनके अच्छे केसेस हैं, इनने बहुत अच्छे केसेस डिसाइड किए हैं, तो जहाँ इस भावना को लेके जो है प्राइम मिनिस्टर बात करता है, तो वहां मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ये जो बादल छाए हुए हैं ये बिखरेंगे और निश्चित रूप से जो है एक नया सपना
ये साकार होता नजर आएगा। इसमें सुधार होगा और सुधार होकर देश आगे प्रगति। मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न नहीं है भानावत जी। अच्छा सर, नरेंद्र कुछ कहना चाहे। सिसोदिया जी बोलिए, अनम्यूट करिए। मेरा सर ये निवेदन है कि ये नरीमन साहब ने जो बात कही है उसमें मतलब लॉयर नरीमन साहब ने ये बात कही है कि जो 2003 में बिल गया था पार्लियामेंट के सामने, उसमें प्रावधान था कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो जजेस की रहेगी, लेकिन कंसल्टेशन गवर्नमेंट के साथ भी होगा, उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव और रहेंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो उस पर ये करना कि सरकार उनको नॉमिनेट कर दे और उनका कोई जुडिशरी या लीगल प्रोफेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं हो, वो बात तो सही नहीं है। लेकिन अगर वो इस बात के लिए क्वालिफाइड हो कि वो उस बारे में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करें तो उनको रखा जा सकता है। दैट कैन बी वन सोल्यूशन। इस जो भंडारी साहब ने बात कही उसमें मेरा सर ये मत है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो एक पार्टी की गवर्नमेंट हो, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो, रिपब्लिकन पार्टी की यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट हो, उसका प्रयास हमेशा ये रहता है कि उनकी जो व्यू पॉइंट है, उनके जो डिसीजंस हैं या उनका जो अप्रोच है, उसी को जुडिशरी सपोर्ट करे। ये दिस इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए जुडिशरी को इट हैज टू फंक्शन एज अ बुलवर्क। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आप नरीमन साहब जो जज साहब रहे हैं, सुपुत्र जस्टिस रोहिंगटन नरीमन, उन्होंने उनको रिपोर्ट किया गया है जिसको कि इट्स वर्दी ऑफ बीइंग कोटेड टुडे। उन्होंने एक लेक्चर में कल ये कहा है, इफ द लास्ट बेस्टियन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉल्स, द कंट्री विल एंटर द एबिस ऑफ अ न्यू डार्क एज। उन्होंने ये भी कहा कि he also said that sitting on names of recommended by collegium was deadly against democracy। आज की तारीख में क्या हो रहा है, कोलिजियम का डिसीजन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया इसलिए इट इज फाइनल टिल इट इज रिव्यूड, लेकिन जो रिकमेंडेशन करते हैं अगर वो गवर्नमेंट को कन्वीनियंट नहीं है तो वो डिले होता रहता है और उस पर कोई डिसीजन नहीं होता। कई बार फिर कोलिजियम उसको इवेट करती है और अच्छे जो मेरिटोरियस जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट नहीं हो पाते हैं, जो जजेस इनकन्वीनियंट हैं उनके ट्रांसफर हो जाते हैं। ये पहले भी हुआ है और आज की तारीख में भी ये हुआ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है विच इज डेमोक्रेसी, and democracy requires that there should be an independent judiciary. Independent judiciary has to be protected. Of course, one way can be that even though today executive is taken into consideration, there are reports from IB, report from R&AW, inputs from state government, all they are before the government. So that sort of consultation is there. But even if beyond that, if consultation is necessary, there can be a committee in which the judicial members should have precedence and their word should have the ultimate decision making. It should be based on their majority opinion. That can be a resolution of the problem. The strange thing is, sir, that neither citizens, which we can understand that not many of them are aware of what constitution is and why it is important, nor the bar associations and bar councils are raising their voice in this matter. ठीक है, ये जो नरीमन एडवोकेट ने जो बात कही है वो बड़ी अच्छी बात है, इस पर जो है फॉलो करना चाहिए, निवेदन किया है और कोई रास्ता तो हमें निकालना ही पड़ेगा। एक चीज मुझे याद आई, वो जो वाजपेयी साहब के साथ टाइम में बिल बना था उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर जो है 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, उसमें लॉ मिनिस्ट्री का नहीं है। वो जो 5 लोगों की कमीशन बनाने की बात थी उसमें ये चीज आई थी, उसमें उन्होंने कहा मैंने सामने बताया था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए और कोई रास्ता निकलना चाहिए। चलिए सर, मेरे ख्याल है मतलब जैसा भी
ये राम वल्लभ जी, आप ये स्क्रीन, हाँ ठीक, अब ठीक है। धन्यवाद दो सर, अगर आपका अनुमति हो सर तो। हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चर्चा हो गई और जैसा कंसेंसस यहाँ लग रहा है कि ये टकराव की स्थिति तो किसी भी रूप में नहीं चलनी चाहिए और दोनों पक्षों को आपस में बैठ के इसका एक कोई हल निकालना चाहिए, वही सही रास्ता दिखता है। मानव जी, आप फॉर्मली हमारे जस्टिस पाना चंद जी को धन्यवाद दें। बहुत सुंदर डिस्कशन रहा, आपके बहुत सुंदर विवेचन रहा और बहुत अच्छा उसके बाद डिस्कशन भी रहा। सर हम अंत में मतलब जो जज साहब ने कहा है, जैन साहब ने, कि बादल छटेंगे और धूप निकलेगी, उसके बाद बादल छटेंगे, तो उम्मीद यही करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि देश के हित में भी है और संविधान की भावना भी यही रहेगी कि सब अंग मिलकर के काम करें। और आपने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए बताया है। देखिए, मजे की बात यह है सर कि एग्जीक्यूटिव भी ये कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जुडिशरी भी कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेजिस्लेचर भी कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। उसी के सुप्रीमेसी के बाद ही ये सारी की सारी जो बातें आ रही है। एनजेएससी जो था ना, छोटे आपने शायद उस पर टच कम किया सर, कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, उसमें जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा कंसल्टेशन और उसकी बात आ जाती, चेयरमैन उसके सीजीआई होते थे, उसमें एक दो सीनियर मोस्ट जज होते थे और एक सरकार में दो लोग नॉमिनेट होते हैं उस कमेटी के द्वारा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई मिलकर तय करते हैं। तो ये एक मामला था, हालांकि वो तो मामला खत्म हो गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द ही कर दिया, तो वो बात तो फिलहाल तो खत्म हो गई है। लेकिन कंसल्टेशन कब कॉन्करेंस बन जाता है या कॉन्करेंस कब कंसल्टेशन तक रहता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि आज की तारीख में जो स्थिति है, जैसे आपने भी कहा कि फाइनल जो व्यू है, फाइनल जो पोजीशन है, वो तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट की ही प्रिवेल कर रही है। और शायद इसीलिए कई लोगों को लग रहा है कि सब हमारी बात तो चल ही नहीं रही, हम बेचते हैं, हमें मानना ही पड़ेगा, एक बार लौटा दिया तो फिर मानना ही पड़ेगा। तो एक तरह से इन वे कॉन्करेंस है, शायद देश के हित में जो व्यवहार रहा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, उसको देखते हुए तो अभी जो चल रहा है वो ठीक है। और इसमें थोड़ा ओपेकनेस अगर कम हो सकते हैं, थोड़ी पारदर्शिता बढ़ सके, तो लोगों का भरोसा इस कॉलेजियम सिस्टम में और बढ़ेगा। देखते हैं सर आगे आगे क्या होता है। आपने बहुत, एक तो आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया जज साहब ने, और नहीं, आपने बहुत आपने स्वीकार किया और हमें सबको इससे अवगत कराया। और बाकी ये प्रश्न तो आपकी उस बात से ही हमें आशा करनी चाहिए कि जो अभी आशंका के जो बादल हैं देश के भविष्य पर या लोकतंत्र के भविष्य पर, बादल छटेंगे, क्योंकि धूप निकलेगी। और धूप आप ही जैसे विद्वत जनों के आपस से सब लोगों के बातचीत करने से ही निकलेगी। और उम्मीद ये करता है, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी सवाल उठाए, सभी खन्ना साहब है, भंडारी साहब है, श्रीवास साहब है, सभी ने अपने अपने तरह से कोर्ट को देखा है, जाना है, समझा है। तो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। भंडारी साहब जो है, एक बात निवेदन करूंगा, ये सॉरी मानवत साहब, नहीं कोई निवेदन करूंगा, एक रेजोल्यूशन को ने पास कर दिया आपका एसोसिएशन आज के इसमें समअप करके, जो बात आपने कही है उस आधार पे कि भाई क्या करना चाहिए, दिस इज द रिव्यू एसोसिएशन में सेंड इट्स व्यू। हाँ, बात देखते हैं, अगर बात अगर होगी तो जरूर बात करते हैं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू प्रेसिडेंट सर, चेयरमैन सर। डिफिकल्टी आती है, मैं अपने आप को ज्यादा ठीक तरह से कई बार सर आपने एक बात छोड़ दी, आपने राज नहीं बताया था कि आपके एक्टिव बने रहने का, एनर्जेटिक बने रहने का जो राज था, वो बात शायद अरुण कुमार साहब ने कहा था, उस पर भी कुछ प्रकाश डालेगी, वो बात रह गई। कभी अलग से उस पर एक अलग से चर्चा रख सकते हैं कभी, ये हमारे बट यू आर बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस हु आर फार मच यंगर देन यू सर। बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, मेरे ख्याल में मनीष जी चाहे तो अब समाप्त भी कर सकते हैं मीटिंग। थैंक यू सर, हो गई।